تم نے مجھے علی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا صفت اللہ. ہمارے ساتھ کام کا وعدہ کر کے بالکل ہی غائب ہو گئی. سچی بات یہ ہے بیگم صاحبہ کہ اس گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں کہا. وہ آدمی ہے زبان کا پکا، ضرور آئے گا. مجھے بھی اپنی زبان کا پاس ہے، ورنہ یہ کام تو میں کسی اور کے حوالے بھی کر سکتی ہوں. میں 1-2 دن تک علی کا انتظار کروں گی، اس کے بعد گل صاحب سے کچھ مشورہ کروں گی. گل صاحب؟ کیوں؟ اب اتنا اہم کام یہ کسی غیر اور اجنبی کے حوالے تو نہیں کر سکتی. لیکن ہمیں ہر حالت میں اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے مامی. اس کے لاعلمی میں اگر ہم یہ کام کسی اور کے حوالے کر دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. اس کے ساتھ مذاق کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آج کل تمہاری ساری باتیں، ساری حرکتیں مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں. صفت اللہ. جی بیگم صاحبہ، جی وہ یہ ابھی بچی ہے بیگم صاحبہ، اس کی باتوں کا برا نہ منائے. لیکن میں اپنے کاموں میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی. میں اسی وقت گل صاحب سے بات کرنے جا رہی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا بیگم صاحبہ. گل صاحب. کیوں؟ گل صاحب پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کاروباری معاملات میں اس کا رویہ پہلے سے مشکوک نظر آ رہا ہے، اور اب کیا ہوا ہے؟ علاء الدین خان کے ساتھ آپ کا نیا رشتہ. اس رشتے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ چھوٹی بی بی کا رشتہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے کے لیے یہاں آیا تھا، اور میں نے اسی وقت انہیں اس بات کا جواب دے دیا تھا. اس مطلبی دنیا میں ہر بندہ اپنے سوال کو ذہن میں رکھتا ہے، دوسرے کے جواب کو نہیں. نئی بات نئی خبر. کیوں دلیا، خیر تو ہے؟ تمہاری سانس پوری جا رہی ہے. شیر خان آ رہا ہے خان. کیا؟ اس کا بیٹا بھی ہے اس کے ساتھ، وہ آ گئے. لالا پخیر پخیر. یہ لالا پخیر پخیر. کیسے ہو گئے محمد خان؟ کس حال میں ہو؟ بھائی آپ نے آج راستہ کیسے بھول لیا؟ تمہاری خیریت معلوم کرنے آئے تھے. السلام علیکم ماما جی. بخیر بچے بخیر. بیٹھو 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 بیٹھو. ناصر کے جانے کے بعد تم بالکل اکیلے رہ گئے ہو. علی تم سے ملنے آ رہا تھا، میں بھی ساتھ چلا آیا. بہت اچھا کیا شیر لالا. ہماری زندگی تو بس ان بچوں کے ہو کر رہ گئی ہے، انہیں کے سارے جی رہے ہیں. دلیا یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ فصلہ چائے کا بندوبست کرو جلدی. شاباش شیر لالا آئے بھائی. چائے ضرور پیئیں گے. ہاں ناصر کے افسر بننے کی خوشی مجھے ہے، اگر اس کے جدائی کا دکھ بھی تو ہے نا. دکھ کس بات کا فقیر محمد؟ تم نے تو بڑا کارنامہ کر کے دکھایا ہے. دنیا تم پر آفرین اور شاباش کہتی ہے. ماما جی کو ناصر کے بچھڑ جانے کا احساس ضرور ہوگا. میرے ساتھ اپنے کمائیگی کی فکر ہے علی بیٹے. اب ناصر اتنا بڑا افسر بن کر آئے تو اس کے لیے گاڑی بھی ضروری ہے نا. ہونی تو چاہیے ماما جی. میرے اپنے مسائل نہ ہوتے تو ان چیزوں کے بجائے میں ناصر کے لیے ایک اچھی سی گاڑی خرید لیتا، مگر کیا کریں، یہ بھی اپنی مجبوری ہے. ان مسئلوں کو تم ختم کیوں نہیں کر دیتے فقیر محمد؟ اسے تمہیں کیا ملے گا؟ دیکھو شیر لالا، تم میرے اجرے میں پہلی دفعہ آئے ہو. ان باتوں میں پڑھ کر میں تم سے کسی قسم کی تلخ کلامی نہیں کرنا چاہتا. میرا مطلب تم نہیں سمجھے فقیر محمد. اچھا چھوڑیں ان باتوں کو. علی کے بارے میں اب تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ علی اپنے لیے ایک فرم کھولنے والا ہے. لاکھوں کی بات ہے، اور اس کے لیے مجھے زمین بیچنی پڑے گی. زمین بیچنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں شیر لالا. علی ناصر کا بھائی ہے اور میں اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں. لیکن تم تو خود فقیر محمد. ناصر کی گاڑی کے لیے میں نے کچھ رقم کا بندوبست کیا ہے، مگر اس کی گاڑی سے زیادہ ضروری علی کا کاروبار ہے. یہ کیسے ہوگا فقیر محمد؟ تم پہلی بار میرے ڈیرے پر آئے ہو شیر لالا، اور تمہارے احسان کا بدلہ اس سے بہتر طریقے سے میں نہیں چکا سکتا. یہ منظر کتنا خوبصورت ہے وکی، ونڈرفل. تم مجھے بڑی غلط جگہ پر لے آئے. انکل ایڈی کا
को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए तुम्हें कंपनी देने आया हूँ। तुम्हारे ख्याल में ये गलत जगह? हमारे मुल्क में इस तरह का मंजर बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, बड़ा डेंजरस। डेंजरस? इस किस्म के मनाजिर और सिचुएशन यहाँ के नाकाम आशिकों को खुदकुशी की दावत देते हैं। नाकाम आशिक? खुदकुशी? सुसाइड। सुसाइड? मुझ जैसे नाकाम आशिक के लिए खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। What are you doing? Are you crazy, Vicky? Please, please. एक डॉक्टर की हैसियत से मैं तुम्हें इस एक्शन की इजाजत नहीं दे सकता। देखो, इंसानी जिंदगी बहुत कीमती शय है। प्लीज, रिलैक्स। एक इंसान होने की हैसियत से मुझे तुमसे यही तवक्को थी कि तुम मेरी खुदकुशी की अटेम्प्ट को हरगिज़ कामयाब ना होने दोगे। थैंक यू फॉर दिस कॉर्टेसी। लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क में अक्सर मरीज डॉक्टरों के हाथों मर जाते हैं। Oh, come on. It's a joke. ये जोक नहीं है, मैं बड़ा सीरियस हूँ। अपनी नाकाम मोहब्बत के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। We are friends. ये मेरी जिंदगी की टॉप सीक्रेट है। वैसे शादी के सिलसिले में तुम्हारा फैसला बड़ा गलत फैसला है। ये फैसला मेरे डैड का है। अंकल एडी ने अगर जिंदगी में कोई गलत फैसला किया है तो वो यही है। गलत फैसला? Is there any flaw in it? कैलिफोर्निया जैसे तरक्की याफ्ता इलाकों के लोगों के बारे में मैंने यही सुना है कि शादी ब्याह के सिलसिले में उनके चॉइसेस और फैसले अपने होते हैं। I see. मैं यहाँ डैड की मर्जी से आया हूँ, लेकिन अपने लिए शादी का फैसला जेबी को देखने के बाद ही किया मैंने। लेकिन जेबी का फैसला तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता माय फ्रेंड। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये मेरा मुशाहिदा है, मेरी ऑब्जर्वेशंस मेरे ख्यालात का निचोड़ होते हैं और मेरे ख्यालात बहुत ऊंचे होते हैं। तो तुम सचमुच मुझसे रूठ गई हो? रूठ जाने की बात तो है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और हमें खबर तक नहीं। जिस बात के मुतालिक मैं खुद अभी तक वसूख से कुछ नहीं कह सकती, उस बारे में तुम्हें क्या इन्फॉर्म करती? तो क्या ये झूठ है? ये सच भी हो सकता है। अगर ये सच है तो तुम्हें अब तक इसकी खबर क्यों नहीं? जेबी, तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये फैसला ना मेरा है ना मेरे दिल का, ये मम्मी का फैसला है। अजीब बात है, तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो रहा है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। तुम्हारे माशरे में लोग दिलों को वीरान करते हैं और घरों को आबाद करते हैं। यहाँ इंसान कुचले जाते हैं और खानदान बनाए जाते हैं। अगर ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो मैं आंटी से बात करूंगी। मेरी मम्मी सारी दुनिया में मेरी यही एक माँ है और उसकी जिंदगी भर का यही एक अरमान है। उसे पूरा होने दो नाज, मैं उसे पूरा होने दूंगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुम अली का रिश्ता वापस भेज देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अली, अली खान
हमको अपना कारोबार शुरू करने की इजाजत आप नहीं दी खान? तो क्या वो तुमसे इजाजत मांग कर जाता? तुम बात बात पर इस बेचारे को क्यों टोकते हो इंदरगुला? मलंग अच्छा आदमी है। अच्छा कम बेवकूफ ज्यादा है। इस मिस्किन से तुम क्या चाहते हो? मिस्किन नहीं, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है खान जी। मैं खिलाड़ी हूँ? हाँ, तुम ये ख्वाब देख रहे थे कि अली खान सरकारी अफसर लगे और तुम्हें भी अपने साथ भर्ती करेगा। हाँ? जब अली का काम चल पड़ेगा तो इसे क्या, मैं तुम्हें भी उसके पास शहर भिजवा दूंगा। शायद आप हमसे तंग आ गए हैं खान जी। तुमसे नहीं, तुम्हारी बातों से। ये तो फकीर मोहम्मद का टांग आ रहा है। हाँ हाँ वही है। अस्सलाम वालेकुम शेर लाला। बस बस लिया संभालो खड़ंगे को। आओ बैठो खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ शेर लाला बैठो। हमने बैठ जाना है या तुमने उतरना है? आप ही के डेरे पर जा रहे हैं। बैठो। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो नासिर की कोई चिट्ठी विट्ठी आती है फकीर मोहम्मद? हाँ शेर लाला, अल्लाह का बहुत एहसान है, बाकायदगी के साथ। किस हाल में है वो? बड़े मजों में खान आपकी दुआ से। अब तो उसकी ट्रेनिंग की मुद्दत खत्म होने को ही है। बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा अफसर। अल्लाह का शुक्र है कि फकीर मोहम्मद खान के अरमान पूरे हो गए। मुझसे ज्यादा खुशी की बात तो तुम्हारे लिए है शेर लाला। नासिर तुम्हारा ही भतीजा है। मेरा भतीजा है लेकिन तुम्हारा बेटा। तुमने खून पसीना एक करके उसे इस मकाम तक पहुंचा है। शायद वो अली का ही नजर नहीं आ रहा। अली? वो तो कब का शेर क्यों है खान जी? क्या शहर गया हुआ है? क्यों वो शहर को छोड़ के नहीं आया था? दोबारा कहीं वो वहां? ये बात नहीं है। असल में अली ने शहर में अपना फर्म खोल लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने जल्दी? मैं तो खुद उस सिलसिले में आपके पास आया हूँ और नासिर के साथ अली के बारे में खत किताबत भी होती रही है और ये कुछ थोड़ी सी रकम भी साथ लाया हूँ। ये क्या फकीर मोहम्मद खान? शेलाला नासिर की गाड़ी के लिए मैंने कोई 1 लाख इकट्ठा किया था, मगर उसकी गाड़ी से ज्यादा जरूरी ये काम है। बहुत मेहरबानी फकीर मोहम्मद खान, लेकिन उसका काम हो गया है। उसके लिए मैंने 10 जरीब जमीन बेच डाली है। 10 जरीब जमीन बेच डाली? शेलाला ये तुमने क्या किया? वो सड़क के किनारे 2 जरीब जमीन से भी तुम्हारा काम चल सकता था। कौन सी जमीन? वो जो गुल मोहम्मद को बख्शिश में दी थी। लेकिन फकीर मोहम्मद खान, बख्शिश में दी जाने वाली चीज कभी वापस नहीं छीनी जाती। मेरा भाई बेमुरवत हो गया है तो क्या मैं अपनी गैरत नीलाम नहीं कर सकता? शेलाला इसका मतलब तो ये है कि आप खुद जालिम के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने हाथों को अपने गले का पन्ना भी तो नहीं बना सकता। लेकिन कातिल के हाथ में तलवार देना कोई अक्लमंदी नहीं है शेलाला। और गुल मोहम्मद तुम्हारी दी हुई जमीन पर इस गांव में कारोबार चमकाएगा और अब ये मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए ताने की बात है। ना तो अब मुझे उससे कोई गरज रहा है और ना उसके कारोबार से। एक अजनबी शख्स है वो मेरे लिए। और अगर नासिर के हिस्से की जमीन पर मैं कब्जा जमा लूं तो फिर? भाई वो तुम्हारा हक है और हक बात की मैंने कभी मुखालिफत नहीं की फकीर मोहम्मद खान। फिर तो बात ही खत्म हुई खान। शेर खान ने तो आपका रास्ता ही साफ कर दिया। अगर शेरलाला ने इतनी गैरत की बात कर डाली तो मैं भी एक बार फिर गुल मोहम्मद को पैगाम भिजवाता हूं कि वो शराफत से नासिर के हिस्से की जमीन खुद उसके हवाले कर दे।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा आपकी तबीयत तो ठीक है? बस बेचारा, खैरियत में? एक गिलास पानी दे दो मुझे। थैंक यू। क्या हो गया आपको? आप कुछ बताते क्यों नहीं? फकीरे ने मुझे फिर पैगाम भिजवाया है नफी। तो ऐसे गुंडों और बदमाशों के खिलाफ आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराते? पुलिस में बड़े बड़े अफसर आपके दोस्त हैं। पुलिस का मतलब है कानून, और कानून के यहाँ मेरे दुश्मन का पल्ला मुझ पर भारी है। आप तो कहते थे कि कानूनी हैसियत आपकी मजबूत है। तो ठीक है, अदालतों के चक्कर में मुझसे बाजी नहीं ले जा सकता, लेकिन कम से कम जहनी अजियत का सामना तो करना होगा ना। और फिर कानून का दरवाजा तो वही खटखटाएगा। मुद्दई मैं नहीं, वो है। जायदाद पे कब्जा मेरा है। ये तो ठीक है, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए आप उन गुंडों और बदमाशों के खिलाफ दावा तो दायर कर सकते हैं। फकीरे जैसे गरज के भूखे शख्स को न कानून की परवाह होती है और न पुलिस की। तो ऐसे गुंडे लफंगों के खिलाफ कल अगर आपके चारों बंगलों पर अपना हक जताएंगे तो आप यूं खामोश बैठे रहेंगे? पापा, आप गांव की सारी जायदाद बेच क्यों नहीं देते? क्या रखा है हमारे लिए गांव में? गांव के साथ आप दोबारा रिश्ते जोड़कर आखिर। ये सवाल मुझसे एक बार नहीं, बार बार किया गया है। ये फैसला मैंने एक बार नहीं, कई बार किया है बेटा, लेकिन मुसीबत तो ये है कि फकीरे के खौफ और दहशत से कोई मेरी जायदाद खरीदने के लिए तैयार भी नहीं होता। पता नहीं आप लोगों ने फकीरे से क्या बनाया हुआ है। अगर आपके पास इसका कोई हल नहीं तो इसका जवाब मैं दूंगा। अली ने आपको यही जगह बताई थी मम्मी? हाँ, टेलीफोन पर तो उसने यही जगह बताई थी। वो देखिए मम्मी, वो साइन बोर्ड, अली इंजीनियरिंग, यही होगा मम्मी। नीचे आ गया ना। मेरा ख्याल है कि हम सिफतुल्लाह को भेजते हैं तो ये जाके पता करके आएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ अली, तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया। हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ बैठने की जगह है? जी बिल्कुल। ठीक है ज़ेबी, तुम सिफतुल्लाह के साथ जाओ, जल्दी से शॉपिंग मुकम्मल कर लो। मैं अली से कुछ बातें करनी हूँ। आप क्या पीना पसंद करेंगे जी? किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी और अपने काम के बारे में पता करने आई थी। ठीक है, तुम जाओ। मुझे मालूम है जी, मेरे ज़ाती फर्म के मुहरिकात में आपका काम भी शामिल है और इसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन मुश्किलात पर मैंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया। कोई माली मुश्किलात? जी कुछ इस किस्म की, और अभी कुछ ही दिनों में हम आपके मंसूबे की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि बिस्मिल्लाह भी आप ही के काम से करने वाले हैं। लेकिन मैं तो इस सिलसिले में अब एक दिन भी मजीद इंतजार नहीं कर सकती अली। आपको आखिर इतनी जल्दी क्यों है बेगम साहिबा? तुम्हें मालूम है ना, ज़ेबी के चचा का लड़का अमेरिका से आया हुआ है। जी। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी से पहले ही हमारे प्लाजा का काम शुरू हो जाए। शादी?
हाँ, बदर का ज़ेबी के साथ निकाह। ये कब बेगम साहबा? अगले महीने की किसी भी तारीख को। अली, तुम किस सोच में पड़ गए? मैं आपके काम के बारे में सोच रहा हूँ कि जल्दबाजी में होने वाले अक्सर कामों के नतीजे बेहतर नहीं होते। आप अगर कुछ दिन और इंतजार कर ले तो अच्छा रहेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है अली? लेकिन इतने कम वक्त में और बगैर किसी मंसूबाबंदी के अगर हम इतने बड़े काम की इब्तिदा कर भी लें तो मेरे काम के मयार पर असर पड़ने का अंदेशा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर ये काम आप किसी दूसरे के सुपुर्द करें तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे इंतखाब में गलती की है। मैं ना आपको धोखे में रखना चाहता हूँ और ना खुद को। धोखा? मैं अपनी ड्यूटी और पेशे के साथ धोखा नहीं कर सकता बेगम साहिबा। अगर आप मुझसे क्वालिटी और मयार की उम्मीद रखती हैं तो इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। अली इंजीनियरिंग, ये हमारे लिए एक नई खबर है सर जी। ये कोई अच्छी खबर नहीं है खादिम हुसैन। फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड, और इस फ्रॉड का पोल भी एक दिन खुल जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम कोई बच्चों का खेल नहीं। पता नहीं अली के हाथों इतना बड़ा सरमाया कहां से लगा। कहीं बेगम साहिबा ने तो फाइनेंस नहीं किया इसे? हो सकता है उन जैसी हस्तियों पर डोरे डालने के लिए उसने इंजीनियरिंग फर्म का ढोंग रचाया। लेकिन बेगम साहिबा भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली कामरान जी। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं। इस काम के लिए तो बहुत सरमाया चाहिए। अरे उस गरीब की मिसाल तो उस कब्बे जैसी है जो हंस की चाल चलने के शौक में अपनी चाल भी भूल गया, अच्छी भली मुलाजमत से हाथ धो बैठा और अब हमारे साहब की हमअसरी में अपने बाप की बची खुची जमीन का भी सफाया कर देगा। तुम जो भी कहो खादिम हुसैन, लेकिन पता नहीं क्यों इस शख्स की यहां मौजूदगी से भी मुझे खौफ महसूस होने लगता है। आपका ख्याल ठीक है। यह भी मुमकिन है सर जी कि बेगम साहिबा के प्लाजे का मंसूबा बेगम साहिबा पापा के अलावा किसी दूसरे शख्स पर इतने बड़े मंसूबे, इतने बड़े सरमाए का एतबार कभी नहीं कर सकती। ये तो है सर जी, लेकिन हमारे साहब के उनके साथ बड़े अच्छे मरासम हैं। लेकिन तुम्हारे साहब इन दिनों गांव के बखेड़ों में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें यहां के मामलात की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं अली हमारी लाइल्मी में बेगम साहबा को अप्रोच ना करे। है तो बड़ा चालाक आदमी सर, हमारी बिल्ली और हम ही पर म्याऊं। प्रिंस, इसका मतलब है कि अली अब कारोबार के मैदान में भी तुम्हारा रकीब बनकर सामने आ रहा है। उसे खुलकर सामने आने दो। मुझे तो उसी दिन का इंतजार है कामी कि वो खुलकर मेरे मुकाबले पर आ जाए। मैं तो उस पर वार करने के लिए जवाब ढूंढ रहा हूं। हाँ, कुछ न कुछ तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये अली बहुत छोटा आदमी है खादिम हुसैन, और ये छोटे लोग जब बड़ी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। पसंद आ गया ये साइट? ब्यूटीफुल, खूबसूरत जगह। लेकिन इस जगह पर डैड क्या करने आए? अंकल आए हैं? हाँ, अकेले हैं और मेरे ख्याल में कुछ लिखने में मसरूफ हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं उनके पास। तुम जाओ, आई एम जस्ट कमिंग। ओके। हेलो सर, आप बड़े मसरूफ नजर आते हैं, बल्कि बहुत लोनली, बहुत तन्हा। मुझे अफसोस है सर, बदर के आने से आप मेरी कंपनी से मुसलसल महरूम हो रहे हैं। गनीमत है मेरे लिए। क्या सर? बाहर का मौसम है और बाहर के मौसम में मुझे फूलों के सिवा और कोई कंपनी नहीं भाती। आप फूलों से किस जुबान में मुखातिब होते हैं सर? खुशबू की जुबान। पागल आदमी, तुम आज तक ये भी नहीं जान सके कि फूलों की जुबान खुशबू होती। लेकिन सर यहाँ तो तरह तरह के फूल हैं। तरह तरह के फूल और भांत भांत की बोलियां।
यही बताना चाहते हो ना मिस्टर विक? याद रखो, इनमें से हर एक फूल की अपनी जुबान, अपनी खुशबू एक जैसी होती है। न तो इंसानों की तरह इसकी जुबानें बदलती हैं, न इनके रवैये। बदर को यहाँ बुलाऊं सर? वो भी आए हैं। उसे यहाँ आना है तो खुद ही आ जाएगा। मुझे मालूम है सर, आप इंसानों से ज्यादा फूलों से प्यार करते हैं, और इसी बैकग्राउंड में मैंने आपके बर्थडे के मौका पर पहली मुलाकात पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुलदस्ता। वैसे तुम्हारी बातें मुझे शायराना सी लगती हैं मिस्टर विकी। कहीं तुम? हाँ, शायर नहीं हूं सर, लेकिन बहुत जल्द होने वाला हूं। किस गुनाह की पादाश में? तन्हाई बड़ा अजाब है अंकल, और शेक्सपियर के ख्याल में दुनिया की शायरों की अक्सरियत गमे तन्हाई की पैदावार है। शेक्सपियर ने ये बात मजाक में कही होगी। वैसे मेरे ख्याल में शेक्सपियर जैसा माकूल इंसान इस किस्म की बेहुदा बात कर ही नहीं सकता। वो कैसे अंकल? अगर तन्हाई शायरी के लिए मुहर्रक होती तो मैं शायर ना बन जाता। तो क्या शायराना माहौल इस खामोश फिजा और मुकम्मल तन्हाई में हाथ में डायरी लिए आप शेरों के अलावा और क्या लिखने बैठ गए थे सर? ये तो फकत मेरी जिंदगी की यादाश्तें, जस्ट मेमोरीज ऑफ डिजर्टेड लाइफ, divine comedy of a departed soul, the melting shrieks of a broken heart, and what not. हेलो डैड। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें याद होगा तुमने कल रात की मोहलत मुझसे मांगी थी, और रात मैंने सोच और जाग कर गुजारी। वो क्यों डैड? मैं आपको स्लीपिंग पिल्स ला के देता। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है, और तुम अभी तक। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया डैड। दरअसल मैं रात को जल्दी सो गया और सोचने का मौका ही नहीं मिला मुझे। सोचने का मौका नहीं मिला? इतने अहम और संगीन मसले पर तुम्हारे पास सोचने का वक्त ही नहीं? ये अंकल को क्या हो गया? मुझसे मेरी शादी और उसके शराइत के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन इस मुल्क में कोई जेन्युइन फैसला करना कितना मुश्किल है। कितनी कंफ्यूजन है विकी। तो तुम अंकल को साफ साफ बता दो कि तुम्हें यहाँ ठहरना पसंद नहीं। लेकिन इससे उनका दिल टूट जाएगा विकी। फिर तुम्हारे इरादे क्या है बीडी? मेरे लिए यहाँ जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। मुझे जाना होगा। I must go. मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा बीडी। आप किस लिए परेशान हो रही हैं मम्मी? बेगम साहिबा ने अपना फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। बेगम साहिबा से ज्यादा हमारे लिए बदर का फैसला अहम है। शादी के लिए बदर की वही शर्त है कि वो अपनी दुल्हन को अपने साथ कैलिफोर्निया ले जाएगा। ये आप कैसे कर सकती हैं? ये तुम्हारी लैला आंटी ने मुझे कल ही बताया है। लेकिन इस शर्त को मानने के लिए बेगम साहिबा कैसे तैयार हो सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। कभी नहीं। लेकिन जेबी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि उसका क्या ख्याल है? जेबी से तो मैं तभी उसके मुतालिक पूछ लेती अगर वो खुद इस रिश्ते पे खुश होती। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये रिश्ता जेबी की मर्जी के खिलाफ हो रहा है? उसकी बातों से तो यूं ही महसूस होता है। वैसे जेबी के इस रवैये पे हैरत हो रही है मुझे। हैरत किस बात की? बदर खासा स्मार्ट लड़का है, वो एक डॉक्टर है, फॉरेन क्वालिफाइड। मेरे आफ्ताब से तो अच्छा नहीं है। जो कुछ भी है, बेगम साहिबा तो उसे अपने घर का बंदा समझती हैं। जेबी के चचा का लड़का। चचा का लड़का? घर का बंदा? मैं जानती हूँ,
बेगम साहिबा जेबी को अपने खानदान से बाहर नहीं जाने देंगे। ये ठीक भी है। उसे जेबी के खानदान से कोई गरज नहीं है। उसकी नजरें अलाउद्दीन खान की दौलत और सरवत और उस घराने की शान और शौकत पर लगी हुई हैं। इसमें हर्ज क्या है मम्मी? वो जो कुछ भी है जेबी के अपने बाप का खानदान है। बाप का खानदान तो तुम्हारा भी है। उन जहलों का तस्वर करके तो मुझे शर्म महसूस होती है। मम्मी आप क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। वो भीख मंगे, फुकरे और जट। क्या हो गया मम्मी आपको? उन बेचारों ने आपके साथ क्या बुराई की है? तरफदारी करी अपने रिश्तेदारों की। रिश्तेदार जिस हालत में भी हों, रिश्तेदार ही होते हैं मम्मी। क्या बात है नफीस, तुम्हारा मूड कुछ तुम्हारी बेटी के मुंह में गज भर की जबान निकल आई है। बहुत बोलने लगी है वो। मुझे तो उससे खौफ महसूस होने लगा है। मैं समझा नहीं, क्या कहा उसने? अपने भाई के मुकाबले में मेरे सामने अलाउद्दीन के बेटे की वकालत करती है। मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? बाकी बातें छोड़ो, लेकिन जेबी की बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि उसे बदर की जात से कोई दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ अपनी माँ की मर्जी के आगे मजबूर है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जेबी की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। ओह, आई सी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि तुम जिंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते चलो। तुम्हारी कामयाबी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये क्या हुआ मामा जी? अरे अरे ये तो अपना दूल्हा बेवकूफ है। अरे दुल्हा, दुल्हा इसकी क्या जरूरत थी? हमारे खान को अफसर की चिट्ठी मिली है और हम यूं ही खामोश बैठे रहेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, असिस्टेंट कमिश्नर। दुल्हा, मेरा तो दिल कर रहा है कि पूरे इलाके में घूम घूम कर फायरिंग करूं खान। आज इसने दुश्मनों के सामने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। दुल्हा, मैंने गिन गिन कर इसके ट्रेनिंग के खत्म होने का इंतजार किया था। ये लो आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन है। मिठाई के ढेर लगा दो दुल्हा, जाओ। अब तो आप खुश हैं ना मामा जी? मुझे बहादुर लोग पसंद हैं बेटा, और शुक्र है कि मेरा बच्चा भी अपने मैदान में बाजी ले गया। वाह रे मेरे शेर बच्चे। शुक्र है आपके दिल को तसल्ली तो हुई, और अब मैं चाहता हूँ कि आप पूरे आराम और इत्मीनान से जिंदगी गुजारें। मेरी खुशी तो बस यही थी कि तुम्हारा मुस्तकबिल बन गया। मेरी एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। इसके अलावा भी क्या कुछ बाकी है? हाँ, अब तुम्हारी अमानत के लिए खुल कर लड़ूंगा। ये जंग अब मैं खुद लड़ूंगा मामा जी। ठीक है, लेकिन तुम ड्यूटी पे कब जा रहे हो? बस चंद ही दिनों में ऑफिस ऑर्डर मिलेगा मुझे। लेकिन इससे पहले तुम अपने लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर लो। ये पैसे, इतने पैसे कहां से हैं मामा जी? यूं समझो कि ये तुम्हें अली ने दिए हैं। अली? वो है कहां? तुमने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है अली। कुर्बानी? किस बात की? मुझे मालूम है, तुमने सिर्फ हमारी कंस्ट्रक्शन की खातिर अपनी फर्म स्टार्ट की, और पता नहीं तुमने पैसों का बंदोबस्त कहां से किया होगा। दिस इज माई प्रोफेशन जेबी। मेरे रोजगार और मुआश का मसला, और फिर बेगम साहिबा की तरफ से मेरी जात पर इतना भरोसा, दिस वॉज सर्टेनली चैलेंज फॉर मी। तुम्हारे चचा का घर भी तुम्हारे लिए चैलेंज हो सकता है, और इस बात पर उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो सकते हैं। उनके साथ ताल्लुकात? उस घर में मेरे लिए रहा ही क्या है? और कुछ नहीं, नाज ही तो है। सेबी?
अंकल गुल के घर की कोई भी बात हमसे छुपी हुई नहीं, और इस बात का हमें बहुत दुख हुआ था जब उनकी तरफ से तुम्हारे रिश्ते का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था। तुम्हें किस बात का दुख पहुंचा था? कभी कभी दूसरों की तकलीफ का सदमा उठाना पड़ता है, खासकर जब तकलीफ सहने वाला करीब का हो। लेकिन मुझे इत्मीनान इस बात का जरूर हुआ है कि मुझे बर वक्त अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया है। तुम्हारी गलतफहमी? तुम्हारी गलतफहमी मेरी खुशफहमी भी हो सकती है सेबी। यूं लगता है जैसे हम दोनों तस्वुरात की एक ही जैसे दुनिया में बस रहे हो। एक ही दुनिया? एक ही दुनिया में रहते हुए भी तुमने अपने लिए अलग दुनिया बसाने की ख्वाहिश क्यों की? वो दुनिया महज दस्तूर और रवाजों की दुनिया थी, मेरे माँ बाप के ख्वाहिशों और उमंगों की दुनिया। ये बात मेरी याददाश्त में भी नहीं कि कब हमारे बुजुर्गों ने नाजी को मेरे नाम से मंसूब कर दिया था। इस कदर मुझे उस वक्त हुआ जब 15 साल गुजरने के बाद मैंने नाजी को देखा। 15 साल बाद? कुछ ऐसे वाकयात सामने आए जिनकी वजह से हमारा घर 2 खानों में बट गया और हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए थे। और जब किस्मत ने एक बार फिर हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका दिया तो फिर दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया बदल चुकी थी? तुम तो एक ही घर, एक ही खानदान के लोग थे। घर एक था, खानदान एक था, लेकिन हमारी क्लास अलग अलग थी। मेरे बाबा एक गरीब आदमी है और मेरे चाचा वो बहुत आगे निकल गया है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेगम साहिबा कहाँ है जी? अंकल वो अपने डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई हैं। आप आए बैठे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगी वो। नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा, प्लीज। अंकल को तुम्हारी मौजूदगी शायद पसंद नहीं आई, मैं जानता हूं। इसकी वजह? अपने घर में तो मुझे समो ना सके, दूसरों के घर में भी उन्हें मेरी मौजूदगी नहीं भाती। हालांकि उनको पता है ये तमाम घर, ये बुलंद व बाला इमारतें सब की सब मेरी हैसियत से बहुत ऊंची हैं। अली, मैं जानता हूं ज़ेबी, इन बुलंद इमारतों की छतों तक मेरी नजर भी नहीं पहुंच सकती। कसूर छतों का नहीं, हमारी नजरों का है। नजरों का? इंसान की नजरें तो आसमान तक भी पहुंच सकती हैं। ये तुम ऊपर आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? कुछ खो गया है क्या? मेरे ख्यालात अंकल, और मेरे ख्यालात की उड़ान बहुत ऊंची है। हाँ, इसलिए तो जमीन पर तुम्हारे कदम नहीं जमते। अरे खुदा का वास्ता, कुछ अपनी हैसियत का ख्याल रखो। साहिब हैसियत हूँ, बेगम साहिबा का करीबी रिश्तेदार हूँ। आज फिर बड़े ठाठ में हो, कहीं बाहर जाने का इरादा है क्या? हाँ, मैं वक्त के साथ चलता हूँ और यही मेरी तरक्की का राज है। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम वक्त से आगे आगे चल रहे हो। वो कैसे? तुम्हारे चाल चलन से तो यूं लगता है कि जैसे तुम इस दुनिया में भी वक्त से पहले वारिद हुए हो। मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़ने जा रहा हूँ अंकल। दुनिया से कूच कर रहे हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ विकार अली शाह? विकी प्लीज, फॉर गॉड सेक विकी। अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैं बदर के साथ हॉलीवुड जा रहा हूँ। क्या नाम बताया?
ہالی ووڈ میرے خیالوں کا پرستان. پیڈی کہتے ہیں کہ میرا چہرہ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کے سانچے میں ڈلا ہے. میں ایکٹر بنوں گا. تو تم ایکٹر بننا چاہتے ہو؟ وہ تو پہلے سے مجھے معلوم ہے کہ تم سے اور کچھ بننے والا نہیں. یہاں رہ کر میں اپنا فیوچر تباہ نہیں کرنا چاہتا. اگر میں یہاں زیادہ دیر رہا تو میرا مستقبل ایسا ہی ہوگا. میں بدر کے ساتھ کیلیفورنیا جا رہا ہوں. وہاں مجھے اپنا چانس نظر آتا ہے. کہاں جاؤ گے؟ کیلیفورنیا، جہاں بدر کی ڈولی جائے گی. بدر کی ڈولی کے ساتھ ساتھ اس گھر سے تمہارا جنازہ بھی نکلے گا. لیکن یہ تمہیں کس نے بتایا کہ بدر واپس جائے گا؟ یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. بدر نے مجھے یہ بڑی رازداری میں بتایا. یہ ناممکن ہے، جھوٹ ہے. یہ سچ ہے، 100% سچ. اگر یہ سچ ہے تو پھر قیامت آ جائے گی وقار علی شاہ. خان لالا گھر پر ہیں؟ ہاں ہاں، علاؤالدین خان. جلدی ملاؤ انہیں. جی 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 نہیں ٹھیک ٹھیک. خدا حافظ. دلدار حسین، کہاں غرق ہو گئے یہ سب لوگ؟ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا للی؟ سب کچھ چل گیا ہے، سب کچھ جانے والا ہے. کیا جانے والا ہے؟ میری عزت، میری انا، میرا ناموس اینڈ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ. واٹس دی پرابلم ڈیڈ؟ تمہاری وجہ سے، تم سب کی وجہ سے میری زندگی پرابلم ہی پرابلم ہے. بیگم صاحبہ نے مجھے فائنل وارننگ دی ہے اور اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے. ڈیڈ کیا کہہ رہے ہیں مام؟ اس سے پوچھو یہ پاکستان کس غرض سے آیا؟ آپ خود ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ سامنے کھڑا ہے آپ کے. پاکستان آنے کا مقصد؟ That is a noble secret, Dad. تم آئے نہیں، لائے گئے ہو بدر الدین، اس لیے کہ تمہاری یہاں شادی خانہ آبادی ہو اور شادی کے بعد تم یہاں اپنا گھر آباد کرو، اپنے وطن میں، اپنے پاکستان میں. شادی میں آپ لوگوں کی مرضی سے کروں گا، لیکن یہاں پہ ٹھہرنا میرے لیے مشکل ہے. تمہارے لیے مشکل ہے؟ مجھے واپس جانا ہوگا ڈیڈ، اور واپسی میں آپ کو اور ماں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. یعنی تم اکیلے ہم سب کو یہاں سے اغوا کرو گے اور ہم سب مل کر بھی تم اکیلے کو یہاں نہیں روک سکتے؟ تم اپنے آپ کو بہت زور والا سمجھتے ہو. یہ زور کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے. تمہارا دل کیا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے؟ تمہاری رگوں میں اپنا خون خشک ہو گیا ہے. خان، آپ تو خواہ مخواہ لڑنے پر تلے ہوئے ہیں. میرے بچوں نے ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے. یہاں کا ماحول انہیں بدلا بدلا نظر آتا ہے. تم بھی باہر سے چکر لگا کر آئی ہو. تمہارے تیور بھی مجھے کچھ بدے بدے دکھائی دیتے ہیں. ڈسٹلڈ واٹر پی پی کر تمہیں اپنے گھر کا پانی اچھا محسوس نہیں ہوتا. میں اس کی بات کر رہی ہوں. اگر اس کی بات کر رہی ہے تو پھر اسے سمجھا دو کہ بیگم صاحبہ کسی قیمت پر اپنی بیٹی کو وطن سے باہر جانے نہیں دے گی. اس کی مرضی ہو تو وہ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر بھی نہ جانے دے. اپنے بیٹے کی بات کرو للی. میرا بیٹا اپنی مرضی کا مالک ہے، اور پھر یہ دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے کہ جہاں شوہر رہے گا وہاں بیوی رہے گی. یہ میری اور زیبی کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، اینڈ آئی ایم شور کہ وہ میری بات مان جائے گی. تمہیں یقین ہے کہ تم اسے کنونس کر لو؟ آف کورس مجھے یقین ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کی ماں اس صدمے سے مر جائے گی. تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کے رکھے. اس کو اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں، اپنی ذات میں دلچسپی ہے. آف کورس دس از ویری سمپل فلاسفی. تم یورپ کے فلسفے مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیلیفورنیا کے سٹائل میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور میں سلیس اردو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے وطن سے جانے کا پروگرام کینسل نہ کیا تو میں کفن میں بھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا. اور سمپل انگلش میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ میرا تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ اینڈ وٹ ناٹ اینڈ